Hello, everyone. My name is Minjung Bae. I'm the Cultural Affairs Associate at the U.S. Mission to India. On behalf of everyone at the U.S. Embassy in New Delhi and its American Center, I want to thank you for joining us today. The American Center New Delhi is the embassy's public space to engage with Indian citizens. We offer entrepreneurship classes, a space for civil society organizations to meet, information on pursuing higher education in the United States, art exhibits, book launches, film screenings, discussions, and lectures, and also cultural performances. It's where we can come and learn and grow together. You can learn about the US culture, society, people, and policies. The American Center is home to Nexus, a business incubator, and iHub, a specialized reference and research facility that offers access to comprehensive and authoritative information on the United States. With the continued global pandemic, we are currently hosting all of our events on our Facebook. We look forward to inviting you all back to the American Center for in-person programs as soon as we can. I'd like to thank each and every one of you who has tuned in so far. If you have any questions for our speakers during today's webinar, please be sure to post these in the Q&A section and we'll try to get to them. First, I'd like to kick off this session by introducing Anandana Kapoor. She's an award-winning filmmaker and educationist. She has been directing and producing documentaries since 2004. She is the founder and director of Cinemat India, a film startup that focuses on media literacy and digital storytelling. Her work is critically acclaimed and has been showcased at over 50 film festivals. As a documentary maker and researcher, she focuses on gender, technology, social change, and culture. Anandana has taught documentary making and ethical design in both formal and non-formal spaces. She has been a recipient of the Fulbright Fellowship and the Shastri Indo-Canadian Institute doctoral grants for research on co-creation and interactive documentary media. Anandana curates nonfiction and has served as jury at the Japan Prize, Prix Italia, and Input. Her current work as a recipient of the India Foundation for the Arts Grant is an exploration of how AI-enabled augmented reality storytelling can help bridge the participation gap. She also advises nonprofits on creative economy research and digital literacy initiatives. So welcome, Anandana. Thank you so much, Min. It's a pleasure to be here. मैं बहुत ही आभारी हूँ अमेरिकन सेंटर की कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम आज यहाँ आए आप सबसे बातचीत करने के लिए हम सब काफी उतारू हैं. Thank you. Great. And next, I would like to welcome Roshan Nair, who serves as a digital inclusion specialist in the Indo-Pacific office of the USAID India mission. Roshan has 15 years of experience setting up tech for development projects across South Asia, building 3 award-winning social enterprises along the way. Many technology projects he and his teams designed were focused on questioning the status quo of men's access to technology and finding new ways to increase women's social agency through technology interventions. Prior to joining USAID, Roshan served as a Chief Minister's Fellow with the government of Delhi, where he advised on various aspects of tech policy, including the question of what meaningful support for women entrepreneurs might look like. Before the development sector, Roshan was a financial auditor with KPMG in Texas. He has a bachelor's and master's in accounting of the University of Texas at Austin. So thank you for joining us, Roshan. Yes, thank you for having me. Great. I would also like to welcome Squadron Leader Shipra Sharma, who is a sustainable development expert with a combined background in the military, banking, clean energy, IT sectors. As a director, CSR and sustainability at LTI,
She works to advance the company's global commitment to solve for society through impactful community-based programs in poverty alleviation and climate action. Shipra is passionate about women's socioeconomic empowerment and has been contributing to the cause in action and thought leadership for more than 2 decades. And she's certified in CSR by the Harvard Business School and was identified among the top sustainability professionals in Asia for the Swedish Institute Management Program 2019. Welcome, Shipra. Thank you, Min. It's a pleasure to be here. और American Center का मैं धन्यवाद देती हूँ. नमस्कार. Great. This session will be moderated by Dr. Gauri D. Chakraborty, graduated from Asia's premier institution, Film and Television Institute of India, Pune, and has been a part of the audio-video industry since 1995. She has worked with prestigious institutions like BBC World Service Trust in India on HIV awareness. Gauri was the associate producer for the award-winning film Sheep Thief, and directed by Asif Kapadia. Gauri is a practicing filmmaker, academician, and artist. At present, she heads the Amity School of Communication in Noida, India, which is one of the largest media training hubs in the country. She has been a media educator for the last 15 years, and her core research interests are feminist film theory, spectatorship studies, and female authors. She believes in creating intersecting spaces. She was festival director for the 15th edition of the IAWRT Asian Women's Film Festival 2019. With this, I would request Dr. Gauri to take this conversation forward. Thank you. Thank you, Min, and बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का जिन्होंने इस वेबिनार में जो सम्मिलित हुए हैं. We wish to tell our audiences today that we will be bilingual and we will keep communicating with our guests on concepts related to digital access and gender. I wish to thank the American Center for creating this congregation of panelists who have done immense work in the area of gender and also in the area of digital access. ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो डिजिटल गोष्ठी है जिसको हम वेबिनार कह रहे हैं, ये संभव हुई है डिजिटल टेक्नोलॉजी से और अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरह से हम आपस में आज बातचीत कर पाएंगे और कई मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है वो हम कर पाएंगे और हो सकता है इससे हम सबको कुछ लर्निंग्स मिलें, कुछ ऐसी जानकारी मिले जिससे हमें लाभ हो. We are able to take some learnings back into the kind of work that we do. So I welcome you again. And before I begin the conversation with our filmmaker Anandana, I would request Purva to play a clip from Anandana's work, and then we'll begin the discussion. So Purva, if you could please play the clip. Purva, I think the audio is missing. If you'd like to play it again.
चलो जी, अभी तो डांस की किया आ रही है ना, इतनी बात मुझे सब हमने साथ काम करना है, इसमें अच्छे से करना है, अपने आप को सिखाओ, ठीक है ना? आगे क्या है? नहीं, हाँ, मैं ऐसे करूँगी, मैं दुआ के लिए थैंक यू, दुआ के लिए थैंक यू, सी बनाना, ये करते हैं कैमरा खुद ऑन करो, आपको कुछ पढ़ने की, कुछ आने की जरूरत ही नहीं, बिना पढ़े लिखे क्लिक करते क्या हुआ, कैमरा ऑन करना है, फोन को ऑन करना है और फोन, हाँ मतलब फोन जैसे स्क्रीन लॉक है उसमें हो गया, आगे देखिए पकड़ो, आगे देखिए, आगे ये फोटो लो, आप देख रहे हैं अच्छी सी फोटो लो, कैसी लेगी, पूरा पूरा है उसको दबा दो, ये फोटो खींच ली, अब फोटो कहाँ गई, उसके लिए ये दबाओ, ऐसे दबाओ, नहीं हल्का सा शाबाश, अब ये बनाओ, ये गोला कर, शाबाश, वो बना। Thank you, Purva. Anandana, I just welcome you with, it's a moving clip. It's a moving clip because I think the clip really, in those few seconds, it explains to us the emotion of the lady who's receiving the gadget from you. And I think it also surmises this whole aspect of, women being kept away from digital technology. And it's not just about her receiving the gadget, it's more about the acknowledgement that she's receiving from you as being somebody who can participate in this process of being connected digitally. So we really would like to know from you. You are an independent filmmaker, whose work is informed by the sociopolity. You really work in the areas of issues that that integrate and question issues of gender discourse. Please do tell us, what is this project about, and why have you chosen this particular demographic? आपने क्यों घरेलू मजदूरों को चुना, और वो भी इस वर्ग के जो यंग लड़कियां नहीं हैं, एक पर्टिकुलर उम्र की औरतें हैं, और ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और बताइए. Thank you so much, Gauri. So Ashia is the name of the project. It is basically a mobile documentary. It is an interactive documentary, and people can contribute their stories also if they like. अब आशिया नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हमें देख रहे थे कि जो दिल्ली, भारत की जो राजधानी है, उसमें भी मुझे लगता है कि कई सारी जो औरतें हैं वो अप्रत्यक्ष हैं, हमें दिखती नहीं. दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि उनका वजूद हम पहचानने से इनकार कर देते हैं, और वो ज्यादातर घरेलू काम करने वाली होती हैं, चाहे वो हमारी माएं हो या घर आने वाले श्रमिक हो. और जब इस फिल्म को मैं बनाना चाहती थी, मैं ये देखना चाहती थी कि जो दिल्ली है, जिस दिल्ली को कहा जाता है कि बहुत हिंसक है, जहाँ औरतें नहीं रह सकती हैं, महिलाओं का यहाँ शोषण होता है, उसमें लेकिन कई सारी औरतें आके यहाँ अपना घर बनाती हैं, अपना आशियां बनाती हैं. तो वो इस रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जीती हैं. और इसलिए मुझे लगा कि एज अ फिल्म मेकर मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी अकेले, क्योंकि हर औरत की अपनी कहानी होती है, लेकिन हर औरत का अपना मोबाइल फोन नहीं होता है. क्योंकि औरतों की बारी, खास तौर से जो औरतें माएं बन चुकी होती हैं, उनकी बारी आखिर में आती है. माएं अपनी बेटियों के लिए, पिता अपने बेटों के लिए या बेटियों के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन माओं की बारी हमेशा लास्ट में आती है. चाहे घर में खाना कम हो तो वो कम खा लेना, अगर जरूरत किसी की फोन की हो तो फोन आखिर में माँ को मिले या ना मिले, किसी को फर्क नहीं पड़ता. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वुमेन आर ऑलवेज लास्ट इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी? They become more and more invisible. They have lesser access to the mobile phone and other devices. And therefore, their representation and participation in this vibrant digital economy becomes all the more difficult. So when I'm a filmmaker, so I was looking at it from my perspective. What is creativity? How can we co-create? How can we reflect on what it means to be women together?
एंड व्हाट कैन आई डू सो दैट आई एम नो लॉन्गर टॉप डाउन। मैं आके उनको ये ना कहूं कि मुझे आपको इस तरह से अपनी तस्वीरों में उतारना है या आप मेरे लिए ये कहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम फिल्में बनाते हैं तो हम जो सामने होता है, जिसको हम अपना किरदार कहते हैं, उससे हम कई सारे सवाल जवाब करते हैं और अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उनकी कहानी आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन ये एक मौका था जिसमें मोबाइल फोन उनके लिए लाकर मैं ये कोशिश कर सकती थी कि वो अपनी कहानियां खुद बता सकें। So the idea of ASIA was not just to say how do women want to represent themselves. It was also about how can digital access change who they are. और खास तौर से इन फोन्स को लेते वक्त मैंने ये ख्याल रखा था कि उनमें मोबाइल फोन हो, उसमें भारत की कम से कम 26 भाषाएं थी, ठीक है। तो जो लोग हिंदी अंग्रेजी ना जानते हो और दूसरी भाषाओं में बातचीत करते हो या उनको पढ़ना चाहते हो, रीजनल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, उसका भी मौका दिया जा सके। तो एक थी हमारे साथ, उन्होंने फटाफट अपने फोन को बंगाली में स्विच कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटियां जो दिल्ली में पैदा हुई हैं वो तो बांग्ला पढ़ नहीं सकती, ये फोन अब मेरा ही रहेगा। सो काफी सारी चीजें हैं जिससे ये होता है। और इस उम्र पे खास तौर से रामबती जी को आज आपने देखा, जो कि भावुक हो गई थी। मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से वो इतनी भावुक हो जाएंगी, पर ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि मुझे भी लगा कि मैंने तक नहीं सोचा था कि एक मोबाइल फोन आने से किसी इंसान के अंदर की जिसे कहते हैं ना सारी भावनाएं इस तरह से प्रत्यक्ष होंगी। और ये भावना नहीं है, ये एक मौका है, ये एक मौका है बात करने का, ये एक मौका है पैसे कमाने का, ये एक मौका है इंटरनेट पे जाने का, दुनिया खुल जाती है, तो इनके लिए क्यों नहीं। और रामवती जैसी कई महिलाएं, आनंदना, वो समाज में अपने बच्चे बच्चियों को, अपने आसपास के लोगों को लगातार टेक्नोलॉजी को यूज करते देखती हैं। They are aware of probably not the entire potential of the technology, लेकिन उन्हें ये जायजा है कि इससे कुछ नया हो सकता है और इससे किसी तरह की एक पावर आती है किसी से कम्युनिकेट करने की। ये भी बताएं कि जब आप को क्रिएट करती हैं तो इट्स नॉट जस्ट लुकिंग एट द कैरेक्टर और किरदार को कवर करना, कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है, जो मेकर है उसको भी कुछ देता है, उस तक भी कई नई जानकारियां लाता है। समाज में जो ये डिवाइड है उसके बारे में आपको कुछ नई चीजें पता लगती है जो पहले शायद जब आप उस किरदार को देख रहे होते हैं तो हमें नहीं नजर आती। तो क्या कुछ ऐसी बातें थी जो सामने नजर आई और जो आप इस ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? जी गौरी, एक्चुअली I would look at it in two ways. One is this idea of digital literacy. It will fail if it is only formal. अगर हम इसे पाठ्यक्रम के तौर पे लोगों तक लेके जाएंगे, फोन को किस तरह से प्रयोग किया जाए, उससे क्या किया जाए, उससे अपने बारे में अपना चित्रांकन किया जाए या कुछ उद्योग कारोबार किया जाए, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ एक्सीडेंटल लर्निंग चलती है। जिस तरह से आप गलतियां कर करके सीखेंगे, अपने हिसाब से सीखेंगे, तो ही आप उसको सीख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि को क्रिएशन जो था, जो ये संरचना जो मैंने करी, जो हमने साथ में मिलके वीडियोस बनाए, एक दूसरे से बातचीत करी, उसमें मुझे वापस ये भी याद आया कि फिल्म बनाना भी पाठ्यक्रम से केवल नहीं आता है। आप स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद नहीं करते या अगर आप अपना डर, अपनी सारी पुरानी बातें पीछे छोड़कर आगे नहीं कूदते, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप में क्षमता के अलावा आप में बहुत सारा धैर्य होना चाहिए और आप में हिम्मत होनी चाहिए। ये दो चीजें बहुत जरूरी है और इन सब महिलाओं में ये है, आपको सिर्फ मौका देना होता है। जैसे कई सारी महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि हाँ, हम गलती करेंगे, हम सीखेंगे, हम कर सकती हैं। तो मेरे लिए आई थिंक ये बहुत जरूरी था, खास तौर से कि ये समझना, ये मैं हमेशा से जानती थी। फिल्म की दुनिया ऐसी है कि आपको सिखा देती है कि पढ़े लिखे होने से खूबसूरती नहीं आती, कला की, क्षमता की। और ये चीज हमें समझनी है कि हमारा जो मूल्यांकन है वो कैसे होता है। हम कैसे सोचते हैं कि कौन कितना आगे बढ़ सकता है, कौन बोल सकता है अपने लिए, या कौन किस डिवाइस को यूज कर सकता है, वो सारी चीजें बदली। और आखिर तौर में ये कहना चाहूंगी कि
इन महिलाओं की कहानी सिर्फ इनकी अकेले की कहानी नहीं है, इनके जो बच्चे थे, खास तौर से जो इनकी बेटियां थी, इन्होंने काफी मदद करी। कुछ जो छोटे बच्चे थे, जो लड़के थे, उन्होंने बहुत मदद करी, अपनी माओ के हाथ पकड़े, उनको बोला नहीं आप नहीं छोड़ेंगी, आप कोशिश करेंगी। और कभी कभी क्या होता था, जो जो उम्र में बड़े होते थे वो अपनी माँ का फोन ले लेते थे, जो कॉलेज में जाने वाले लड़के होते थे, फिर पास कोड लगा देते थे। अब क्योंकि मैं उनके घरों से नहीं थी, तो क्योंकि मैं बाहर वाली थी, तो मेरे पास मौका होता था कि मैं जाके उनसे बोलूं चलो माँ को सिखाओ कि पासकोड कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं, और फोन वापस उन्हें दो। तो पूरे प्रोजेक्ट में मुझे बार बार यही देखना पड़ा कि किस तरह से जो आपके पास आती है चीज, वो आपके होते हुए भी नहीं हो जाती है। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफरिंग द डिवाइस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ensuring how long they will engage and how the ownership will remain with them. It won't be stolen, it won't be taken away, it will no longer be passed on to the children. And I think understanding that, going beyond the image, it is part of co-creation. Also refusal. बहुत सारे लोगों ने कहा हम ये नहीं करेंगे, हम इस वजह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें ये पसंद नहीं। तो फिल्म में अगर मैं किसी सेट पे हूँ, अगर मैं निर्देशक निर्माता हूँ, तो जो मैं कहती हूँ वो होता है, क्योंकि मेरा एक विजन है जिसको पूरा क्रू सभी लोग तराशने में मेरे साथ जुट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे सीखना पड़ा और भी ज्यादा कि अगर कोई मना कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और लास्ट में मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, वो इसलिए है कि औरतें सिर्फ डिवाइसेस की वजह से पीछे नहीं रहती, समय नहीं होता औरतों के पास, क्योंकि औरतें इतना काम करती हैं जिसका मूल्यांकन कहीं नहीं होता। अगर आपके किसी बिस्तर पर पड़ी चद्दर की सिलवट वो सीधी करती है, उसे कोई लिखता नहीं है। अगर वो खड़े होकर कुछ जाला हटाती है, उसे कोई लिखता नहीं है। महिलाओं के पास समय नहीं है, इसलिए वो सीख नहीं पाती। तो उनको सिखाने के लिए या उन्हें मोबाइल देने के लिए, समय जिसे कहते हैं टाइम पॉवर्टी, समय ना होना, उसका अभाव, वो समझना भी बहुत जरूरी है। So it's very clear that through that one device, through this project, at the end of the day, you know, the larger lensing at the participation of women, their entitlement to certain processes, it kind of gets revealed. I'm very curious to know, and I'm going to use that word curiosity. अक्सर हम ये भी कहते हैं कि इक्विपमेंट को लेकर महिलाओं की जिज्ञासा नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा एक प्रेजुडिस है। और मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि एक बार जब उनको ये डिवाइस दे दिया गया, तो क्या उसमें एक रेंज रही? एक तो हो गया टाइम पावर्टी कि उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन क्या उनमें से क्या वो प्रेजुडिस बस्ट हुआ? क्या कई महिलाएं ऐसी थीं जो जो जिज्ञासु थीं, क्यूरियस ऑन व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज दैट कुड अनफोल्ड? जी जी, इसमें इसमें आई थिंक आयु का बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, प्रभाव रहा। जो महिलाएं जैसे 50 के पड़ाव से ऊपर थीं, उनमें जिज्ञासा थोड़ी कम थी और शायद समय से वो थक भी गई थी। हमें हर चीज को पूर्ण रूप से देखनी पड़ती है, जैसे आपने कहा लार्जर लेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। लेकिन जो महिलाएं, जिससे मैं कहूँ कि मेरी उम्र की थी या 5 साल ज्यादा या कम की थी, उससे कम की थी, उनमें काफी जिज्ञासा थी और वो फटाफट देखते थे कि चलिए कि जो फिल्म वाले हैं वो अपना फोन हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं, तो चलिए हम फिल्म हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं। अब ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में वर्टिकल आ गया है, तो हम लोगों को अब वर्टिकल पे जाना पड़ रहा है। बट उस समय में जब मैंने फिल्म 2014 में रिसर्च ये सारा शुरू किया था, इतना वक्त हो गया, उस वक्त हम फिल्म को ही प्रायोरिटी देते थे कि भाई हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन उसे वर्टिकल ले जाना, वो सारी चीजें करना, वो सब देखती थी, हिलना नहीं चाहिए। और हमारी कई बातें हुई कि इस फिल्म में देखिए हम पर रोशनी ठीक नहीं आ रही, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें काम करते करते भी फिल्म बनानी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो कई तकनीकियों में घुसना, गहराई में जाना, चीजों को देखना, बातें करना, दूसरों ने क्या बनाया है। तो इस तरह से हमारा, जिसे कहते हैं ना, एक तरह का नेटवर्क बन गया था। हम एक परिवार बन गए थे और हम महिलाएं 1 से 2, 2 से 3, 2 से 12 बनी। और ऐप इसीलिए बनाया गया, जिसे कोड फॉर बॉस्टन अमेरिका में जो कोडर्स थे, डेवलपर्स थे, जिन्होंने हमारी मदद करी है ऐप बनाने में, वो किसी और देश से थे, अमेरिका से थे, लेकिन वो भी इंडिया की महिलाओं की इन बातों से जुड़ गए थे, क्योंकि सवाल जवाब हमारे ऐसे थे कि आप हिंसा से कैसे जुड़ते हैं, फोन कौन कैसे सीख रहा है, अगर आप अपनी दिनचर्या दिखाना चाहें तो आप क्या दिखाना चाहेंगे और क्यों। ये बहुत जिसे कहते हैं बारीक सवाल हैं। इनसे कविताएं भी बन सकती हैं, इनसे कहानियां भी बन सकती हैं, और इनसे बड़ी चुभने वाली बातें भी निकल सकती हैं कि औरतें अकेली रात में क्यों नहीं जा सकती, लोग पुलिस वालों से क्यों डरते हैं, और
क्या जो उनके बेटे और जो पुरुष हैं वो उनका कितना सहायता मतलब सहयोग दे सकते हैं, वो सारी चीजें भी निकल के उसमें आई। तो So which means that right from celebrating the ordinary to actually raising those pertinent points which affect a woman on a daily basis, it's been a range that has emerged out of the project. And Anandana, you haven't stopped there. I mean, you then moved on to look at eDevi. And the first time you mentioned it, again, one is curious to know where has that thought process come from? Why integrate or assimilate, appropriate, the concept of a Devi with digital technology. And you also involved women in the creation of the concept of e-Devi. So for the audiences out there, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट है ई देवी, उसका मोटिवेशन क्या है और उसकी सोच कहाँ से आई? Thank you, Gauri's. So, creation myths have always had a masculine figure at the center. जैसे ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया, या यीशु मसीह आए, या मोसेस आए, या प्रॉफिट मोहम्मद आए, तो मुझे लगता था कि इंटरनेट की एक दुनिया है जिसमें शायद हम एक महिला को जिसे कहते हैं ना संरचनात्मक बना सके। तो द आइडिया बिहाइंड ई देवी वाज कि हम एक इंटरनेट की गॉडेस बनाएं, इंटरनेट की देवी बनाएं। वो देवी क्या प्रतीत करती हैं? वो इस बात का प्रतीक है कि भारत में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते, और आज इंटरनेट से ना जुड़ पाना हमारे देश की सबसे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि जिस तरह से हमारे पास राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, वैसे ही इंटरनेट का अधिकार होना भी जरूरी है। वो बंद होते ही मौलिक अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बंद होते ही सूचना हो गई, या फिर अपने आप को जिसे कहते हैं अभिव्यक्त करने का एक माध्यम आपसे छिन जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की अब इंटरनेट से बहुत गहन तरीके से जुड़ी हुई हैं। इसलिए ई देवी के कॉन्सेप्ट में हमने इस तरह से दिखाया है कि वो हाफ ह्यूमन हाफ मशीन है, हाफ ह्यूमन हाफ कंप्यूटर है, क्योंकि हम भी वैसे हो गए, हमारे हाथों के साथ मोबाइल फोन जुड़ा रहता है। आज ये जो खिड़की है जिससे हम एक दूसरे को देख रहे हैं वो मोबाइल फोन की है, तो हमारे सर भी ऑलमोस्ट एक नई दुनिया में घुस चुके हैं। तो ये आइडिया था कि ई देवी जो है, लोग जा सकते हैं उनकी वेबसाइट पे edevi.org पे अगर जाते हैं तो देवी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। देवी है, उनके 3 रूप हैं। जब इंटरनेट पे ऐसी बातें कही जाती हैं जिनमें जैसे महिलाओं का शोषण हो रहा हो या कुछ हिंसा हो रही हो, तो वो रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। यदि उनको लगता है कि आज इंटरनेट पे सभ्य बातें हो रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बच्चों का शोषण नहीं हो रहा है, तो वो आपको बहुत ही जिसे कहते हैं काम शांत तरीके से मिलती हैं, और उनके हाथ में तब गेहूं होता है, क्योंकि पेट भरा हो तो आप शांत रह सकते हैं। तो ये हमें कभी नहीं भूलना है कि इंटरनेट पे जाने से सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आपको यहाँ रहकर यहाँ के विषयों की समस्या निकालते हुए इंटरनेट की दुनिया में जाना है। और एक बीच का है जिसमें वो अपने ध्यान में चली जाती हैं, तो वो अपने ध्यान में है तो फिर वो ये सोच रही हैं कि आगे क्या होना चाहिए, और उस वक्त आप भी उस समय उस मौके पे उनसे कही हुई कहानी, उनके कथन को समझकर ये सोच सकते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। तो ई देवी आपसे कुछ ऐसे सवाल कर सकती हैं कि अगर मैं आपको एक कलम दूं तो उससे दुनिया कैसे बदलेगी। तो उनके मंदिर में प्रसाद सोच और धारणाएं हैं, और ये आइडिया है कि अगर आप थैंक यू अगर आप इनके टेम्पल पे, इनके मंदिर में अगर आप कोई चढ़ावा दें, चाहे आप हिंदू हैं या नहीं है, किसी भी धर्म से हैं, आप अगर चढ़ावा देना चाहें तो वो चढ़ावा बच्चों की तरफ जाता है जो कि गांव में रहते हैं, जिनको मोबाइल फोन रिचार्ज चाहिए 25 रुपए का 20 रुपए का, जिससे वो महीने भर पढ़ सकें, या स्कूल की फीस, या फिर जो हमारी भारत की नींव रहे हैं। सोने की चिड़िया हमें इसीलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स पर्सन थे, जो हमारे कला से काम करने वाले लोग थे, जो सिलते हैं बुनते हैं, तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वीवर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, उनकी कम्युनिटी को जाता है, क्योंकि इंटरनेट उनके लिए
खास तौर से कोविड-19 के बाद बहुत जरूरी हो गया है। उनके मार्केट प्लेसेस बंद हो गए हैं, उनका आना जाना, उनकी रॉ मटेरियल धागे तक लोगों के पास नहीं पहुंच रहे, तो वो अपनी बुनाई सिलाई कैसे करें। तो ऐसी कुछ कम्युनिटीज हैं, कुछ सिर्फ विमेन की कम्युनिटीज हैं, कुछ महिला पुरुष दोनों की हैं। तो यदि आप ई देवी के मंदिर में आते हैं तो वो चढ़ावा उनको जाता है, क्योंकि ई देवी जो है वो बहुत ही तो अच्छी सोच अनंदना, बहुत ही अच्छी सोच। और रियली आशा करते हैं कि ई देवी जो है वो और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसका जो एक से दूसरे तक जो धागा जो है, जो एक तरह से पिरोने की बात है सोच को, वो जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और you so आपसे हम फिर से बात जरूर करेंगे। फिलहाल हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं रोशन, उनकी तरफ आते हैं। एंड आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो कृपया चैट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। सारे ही पैनलिस्ट बहुत दे विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस दैट यू हैव। रोशन, वेलकम टू द वेबिनार। एंड रोशन, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में, संस्थान में काम करते हैं जहाँ पर लगातार जैसे कि आनंदना कह रही थी, जो जो डिजिटल डिवाइड है, उसको, जो डिजिटल असमानता है, उसको परखते हैं आप लगातार। और न सिर्फ परखते हैं, बट उसके लिए जो जो स्टेप्स लेने चाहिए करेक्शन के लिए, या समाज की तरफ क्या सॉल्यूशंस दिए जाएं, उन पर आप काम करते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे शुरुआत में कि जब हम कहते हैं डिजिटल असमानता, तो इसका एक्सटेंट क्या है, कि अ, कितना ज़रूरी है डिजिटल असमानता को एड्रेस करना, उसको समझना। रोशन, प्लीज हमें बताएं। Sure, thank you. I'm glad to be here. सभी को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। आई सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो जिस फासला की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइड जिसको कह रहे हैं आजकल, सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे इसके लिए ना मैं एक, इफ यू डोंट माइंड, एक किस्सा सुनाऊंगा। 15 साल पहले, ठीक है, 15 साल पहले यही सब था कि मतलब बहुत सारे लोगों के जो तमाम इंजीनियर्स थे MIT और IIT के जैसे मतलब इंस्टीट्यूट्स में जो काम करते हुए रिसर्चर्स थे, उसने कहा कि ये जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट आया है हमारे पास, वो बहुत गजब की चीज है, और ये ना आखिरी गांव तक उसको पहुंचाना है। तो मेरे जैसे लड़कों को पकड़ लिया कि ठीक है भाई, चलो जाओ, अब ढूंढो कहाँ आखिरी गांव कहाँ है, और वहां इंटरनेट लगवा दो। तो हम गए बस और ट्रेन और बैलगाड़ी और ये सब, और हम पहुंच गए मध्य प्रदेश के बीच में। और वहां पर सेटअप किया पूरा, मतलब नए टेक्निक से हमने सोलर पैनल लगवा के, और नए नए छोटे कंप्यूटर जिसके बिजली का क्या यूज बहुत कम था, इस टाइप के बहुत सारे लैपटॉप सेटअप किए, और एक पूरा मतलब नेट कैफे वहां खोल दिया बिल्कुल बीच गांव में, जहां पर बिजली आने का भी समस्या था। और फिर हम गए गांव वाले के पास कि भैया आप देख लीजिए, ये आया है आपके सामने, जो कंप्यूटर है ये आया है सबके सामने। तो महिलाएं भी आए, पुरुष भी आए, मतलब सभी लोग आ गए कि मतलब देखना था, कुछ मेला सा लगा हुआ है, ये क्या है। और सबने देखा, सबने अनुभव किया कि ठीक है, ये लैपटॉप है या ये फोन भी है। मतलब उस टाइम स्मार्टफोन तो आना ही शुरू हुआ, ये 2006, 7, 8 की बात है, आना ही शुरू हो गया उस टाइम। तो उसने कहा ठीक है, चलो भाई हम देख लेंगे। फिर ये चलते चलते 3-4 दिन हो गए। उसके बाद सबने कहा ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है जो आपने लाया है यहाँ पर इसको लेकर के ना मैं क्या करूँ, बेसिकली व्हाट डू आई डू विद दिस टूल दैट यू हैव गिवन। और ये मतलब समझने वाली बात है कि दीज आर बिफोर द डेज ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं आजकल, जिससे कि बहुतों को लगता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेट या डिजिटल जिसका डिवाइड कह रहे हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन की कमी या प्रभाव का की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या था, उस टाइम के जो इंटरनेट था, 15 साल 20 साल पहले की बात है, उस टाइम की जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन उपलब्ध था, जो जानकारी मिलने वाले थे लोगों को, वो सबके लिए नहीं था। बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन था वो इंग्लिश में था, और बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन था वो कुछ ऐसे ऐसे विषय के ऊपर था कि जिसको मतलब आम लोग के लिए कुछ जरूरी नहीं था। मतलब तो
इसके लिए आई गेस हमारे प्रोग्राम्स में ऐसे दबाव आया कि मतलब इसको यूजफुल बना सब। ये नहीं कि मतलब इंटरनेट होने से कुछ होगा, ये है कि मतलब इंफॉर्मेशन जब सही लोगों के हाथ में पहुंच जाता है, कुछ सही सही चीजें हो जाती हैं। तो सबसे पहले मुझे मतलब ये महसूस हो रहा है कि जो आनंदन जी का जो फिल्म है वो देख के सबसे पहले मेरा रिएक्शन ये है कि देखिए आज की डेट में लोगों को तुरंत समझ में आता है, एक फोन दिख जाता है तो तुरंत समझ में आता है कि इसमें मेरा कुछ काम का चीज हो सकता है। तो ये एक बड़ा चेंज है और ये वही इंडिया है, सेम इंडिया है। एंड दूसरी बात जो है, मैं थोड़ा आंकड़े पे आना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग हमारे काम में बहुत रिसर्च लगता है। तो 2018 के आंकड़े हैं कि अबाउट 26% ऑफ इंडियन वुमेन आर हैवी इंटरनेट यूजर्स। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से अबाउट 26% जो है इंटरनेट विद इन वीक 3 बार यूज करते हैं या 3 बार से ज्यादा यूज करते हैं। और 2018 के ये भी आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो जो महिलाएं काम पे जाते हैं, मतलब जिसका टीडीएस कटता है या ऑफिशियली बैंक से पर्ची आता है मंथ टू मंथ, वो भी 26% ही है। तो इसका मतलब 2018 में जो लोग इंटरनेट रेगुलरली यूज कर रहे थे, जो जो कि महिलाएं थे, और जो महिलाएं काम पे जाते थे, अबाउट सेम नंबर था। इसका मतलब डिजिटल डिवाइड जिसको कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं, वो ना सिर्फ डिजिटल की बात है, वो ऑल्सो क्या आर्थिक स्वावलंबिता या जो कहे आर्थिक सशक्तिकरण की का भी बात है इसमें। कि जब तक किसी के हाथ में इकोनॉमिक डिसीजन लेने का पावर नहीं है कि घर पे कोई कह सके कि ये खर्चा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या ये चीजें लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, वो जो एजेंसी है वो कुछ कुछ घर में होते हैं महिला के पास और कुछ कुछ घर में नहीं होते हैं। तो ये हम एक ही शब्द में नहीं कह सकते कि पूरा ऑल इंडिया में ऐसा चलता है या ऑल एक स्टेट में ऐसा है। हर जगह, हर घर, हर शहर, हर गांव अलग। बट एट द हाई लेवल ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो सवाल आपने पूछा कि मतलब डिजिटल डिवाइड का एक्सटेंड क्या है, वो कहाँ तक जाती है, वो यहाँ तक जहाँ मतलब women को basically it goes as far as women's agency can go। तो आप ये जहाँ कहना तक चाह रहे हैं रोशन के जो सामाजिक परिवेश है, जब आप उस डिजिटल टेक्नोलॉजी को उस समाज में के बीच में रखते हैं, तो जो उस परिवेश में जो पहले से जो असमानता चल रही होती है, वो उससे जुड़ जाती है और ये दोनों चीज़ों को हमें एक साथ देखना होगा। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि सिर्फ इक्विपमेंट से बात नहीं बनेगी, उस जो गैजेट है, उस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, वो ऐसा हो कि जिससे जो उसका बेनिफिशियरी है, जो व्यक्ति उसे यूज़ कर रहा है, उसको उसके लिए मूल्य क्रिएट हो, मतलब वो मूल्यवान हो। कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी जानकारी उस व्यक्ति को मिले जिससे कि उसका अपना जीवन जो है वो लाभान्वित हो। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी कुछ ऐसा ही कहना चाहता हूँ। और ये भी कि आज की डेट में जो है गैजेट्स, जो आपने शब्द यूज किए, गैजेट्स बहुत आ गए कि जी। ये जो है नया फोन है, 5G है, 4G है, फलाना है, जो भी है। बाकी इसमें ये भी देखना इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी चीज ऐसे थे जो पहले से ही चल रहे हैं। जैसे मान लो फोन फोन तो पहले से ही था, या मान लो हुँ, जानकारी लेना, वो तो पहले नेट कैफे का काम था। ये इस सब में ना ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई भी महिला पूरा इंडिया में नहीं जाते थे नेट कैफे। कोई लोग जाते थे, कोई लोग अपना सीवी बनाने जाते थे, कोई लोग अपने ईमेल चेक करने जाते थे, कोई लोग तो थे। बट ये है ना कि उस समय की बात है कि बहुत कम विमेन को घर से बाहर जाना अलाउड था या फ्री था। वो मतलब 10 साल पहले की बात ये भी है ना कि मतलब जब सरकार फ्री साइकिल दे रहा था, तब भी लोग लड़ रहे थे कि महिलाओं को साइकिल नहीं मिली। तो मतलब ये सब जो है जुड़े ये हुए हैं। आपस में हम जुड़ी हुई बातें हैं। एग्जैक्टली और तो आप हम लोग क्योंकि नेट कैफ़े कह रहे हैं, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि बहुत से बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मोबाइल स्मार्ट टेलीफ़ोनी नहीं था, कि मैं किसी कैफ़े में जाना चाहती थी इंटरनेट यूज़ करने,
लेकिन नहीं जा पाई, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल था वो उसमें एक अलग तरह का फीलिंग आ रही थी कि शायद ये महिला इधर नहीं जानी चाहिए, मुझे कोई और इंटरनेट कैफ़े चुनना चाहिए दिल्ली जैसे शहर में, जो शायद ज़्यादा खुला हो, जिसमें एक आध महिला और मुझे दिख रही हो। तो आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं आई एम एबल टू रिलेट टू इट, एंड दिस इज एक्चुअली सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक होता है टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना, और दूसरा होगा कि जब महिला को घर से बाहर जाने की ही इजाज़त नहीं है, जब उसको किसी इक्विपमेंट को यूज़ करने की पूरी इजाज़त नहीं है, तो वो कैसे उसका फ़ायदा उठाएँगे, कैसे उसका वैल्यू समझ सकते हैं? अब ये भी बताएँ कि जब हम जैसे आजकल स्मार्ट टेलीफ़ोनी के साथ बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं, जिससे कि जीवन कितना सरल हो गया है। और क्या आपकी रिसर्च में क्या आपकी संस्थान के एफर्ट्स में जो कि विकास की तरफ अग्रसर हैं, क्या ये सामने उभर के आया है कि महिलाएं जो हैं जो यूज़ कर भी रही हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को, वो उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रही? जी, बिल्कुल। और इस बात पे भी मैं नंदनी जी की बात पे आता हूँ कि उसने ये कहा, एक एक चीज़ होता है टाइम पॉवर्टी, समय का ना होना। और ये जो है, ये कोई एक वर्ग या एक समाज से सीमित नहीं है। वो हर जगह जहाँ-जहाँ घर है, जहाँ-जहाँ महिला और पुरुष का यूनिट है, वहाँ-वहाँ ये इश्यू आता है, सामने नज़र आते हैं। जैसे हम आज के अगर आंकड़े पे बात करें कि कोविड-19 के बाद जो है, महिलाओं का जो वर्कफ़ोर्स पार्टिसिपेशन है, वो बहुत कम हो चुका है। सिर्फ़ 1 साल में ऑलमोस्ट 15% ड्रॉप हो गया, पूरा ऑल हुँ, इंडिया में अगर बात करें। तो मतलब ये नहीं है कि ओनली गाँव में होता है या ओनली गरीब परिवार में होता है। ये जो चीज़ है, वो हर जगह होता है, और टेक्नोलॉजी के साथ भी ये एक चीज़ है कि मतलब आप सोचिए, कोई शहरी औरत जो कि आजकल हम कहते हैं कि बहुत फ्री है, उसके पास मान लो एक फ़ोन है, फ़ोन पे बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे आप कह रहे हैं। इसमें ये भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ऐप्स किसने बनाए। आजकल जो आईआईटी ग्रेजुएट्स बना रहे हैं ऐप्स को, उनमें से कितने महिलाएँ हैं? और महिलाओं जो है, क्या वो आईआईटी नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा रहे? ये भी सवाल है ना, कि मतलब घर-घर में ऐसा होता है ना, गिने-चुने चुनौती होते हैं कि अगर लड़का-लड़की दोनों है घर पे, कौन जाएगा जेईई की ट्यूशन में? या लड़का-लड़की अगर नहीं भी, ओनली लड़की है, तो भी सवाल ज़रूर ये आता है कि उसको इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाना क्यों? साइंस में क्यों जाने? उसको आर्ट्स में रहने दो। ये सब जो चर्चा होते हैं, और ये एवरी लेवल पे होते हैं ना, शहर में भी, गाँव में भी हो रहे हैं। ये सब जो है, ये ऐप्स पे भी नज़र आता है, इसका जो असर है ऐप्स पे नज़र आता है, क्योंकि ऐप्स जो है आजकल ज़्यादातर यंग लड़के, या मतलब बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स के बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे जो ग्रेजुएट्स हैं, वो यंग बॉयज़ हैं। मतलब मेरी उम्र के कम, जो भी 25 टू 30 के जो कैटेगरी है, बहुत सारे ऐप्स उन्हीं से बनाए हुए हैं, और उन्हीं के विचारधारा से बने हैं। तो मतलब अगर हम ऐप की बात करें कि कौन-सा ऐप यूज़फुल होता है, ये किस चीज़ के उपयोग में आएगा, ये जो है वो लड़का तय करेगा। तो एक्चुअल में जो लेडीज़ को चाहिए, चाहे जितने भी उम्र के, वो मतलब कोई सोच नहीं रहा है। एंड सिमिलरली अगर आप बड़े-बड़े टेक कंपनीज़ का भी बात करें, जो मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वहाँ पर भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है। जबकि बहुत से केसेस में यूएस और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में वुमेन्स रेट ऑफ ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, जिस स्टेम सब्जेक्ट्स जिसको कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, यूएस और इंडिया दोनों कंट्रीज़ में वुमेन की पार्टिसिपेशन काफ़ी हाई है। बाकी दुनिया से की तुलना में यूएस और इंडिया काफ़ी हाई नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स बनाते हैं विद इन टेक्निकल सब्जेक्ट। फिर भी उनका पार्टिसिपेशन कंपनीज़ में कम है। और एज़ अ रिज़ल्ट जो ऐप्स हैं, वो भी मतलब एक मेल रूप में बनाते हैं। तो जो ई-देवी की बात कर रहे थे हम लोग, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस वजह से कि मतलब there is a need to see this divide not as a class issue, or not as a rural urban issue, but as an issue with economic agency at all levels.
Absolutely. And Roshan, even if it's men who may be devising the apps, the intervention of sensitization can also be so critical. So, those who kind of create the content, if they are aware of the issues, of the common challenges that women face, probably that will also help create new ideas vis-a-vis, using technology. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स रोशन. अब हम चलते हैं शिप्रा जी की तरफ. और शिप्रा, रोशन just talked about the usage of the internet in, let's say, the year 2018, and we are very aware कि कोविड पैंडेमिक के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में जो जगह है, जो उसकी उपयोगिता है, वो बिल्कुल सामने उतर के आ गई है. जहाँ तक अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर हम सुविधाओं की बात करें, तो इस जो एक विश्व में जो लॉकडाउन हुआ और लोग अपने घरों में जो सीमित रह गए, उस समय बहुत कुछ सामने निकल के आया कि महिलाओं को कितनी ज़रूरत है डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की. और कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि शायद देर हो गई है, हमें पहले ही इस सेंसिटाइजेशन को शुरू कर देना चाहिए था. आप एक ऐसे संस्था को रिप्रेजेंट करती हैं जहाँ पर सोच ही है कि सोसाइटी को, समाज को, हर व्यक्ति जो उस इंस्टीट्यूशन में है वो कुछ दे. आपके इंस्टीट्यूशन में वॉलंटियरशिप को एनकरेज किया जाता है, और ख़ास तौर पे गर्ल चाइल्ड को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आप बहुत काम करते हैं. तो कृपया अपने काम के बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं. धन्यवाद गौरी. और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आनंदना और रोशन. इतना अच्छा काम करते हो आनंदना, आप जैसे लोग और भी होने चाहिए. मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बता के कि कई ऐसी संस्थाएं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वेबिनार में. तो उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार. आपने जो बोला गौरी और आनंदना ने भी इसके ऊपर बात करी थी कि महिलाएं 60 से 80% अपने दिन का काम, जो वर्किंग आवर्स हैं उनके, वो अनपेड वर्क में गुजारती हैं. मतलब ऐसा काम जिसका कोई भी ट्रैक नहीं है, चाहे वो पानी भर के लाके आना है घर में पीने के लिए, या चाहे वो घर के सुबह से शाम के काम जो कि किसी को दिखते नहीं है. और इसी में हमारा जो समाज है और हमारा देश ही नहीं, हमारा पूरा विश्व में ये जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली महिलाओं के ऊपर आ जाती है कि कैसे एक घर को संभाला जाए. लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी थी कुछ समय पहले कि जब आप एक महिला को पढ़ाते हैं, आप पूरे परिवार को पढ़ाते हैं. लेकिन जब आप एक लड़की को पढ़ाते हैं, उसकी यंग एज में पढ़ाते हैं, तो आप भविष्य को पढ़ाते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा समाज है उसको बांध के रखती है महिलाएं. हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50% महिलाएं हैं. तो अगर हम ये सोचें, उनको आदमियों जितने अगर राइट्स मिले तो कितना बड़ा एक डिफरेंस किया जा सकता है. इस पे एक स्टडी हुई थी रिसेंटली कि अगर महिलाओं को हम इंक्लूड करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन करें उनका, तो विश्व भर में 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ऊपर 2025 तक ऐड किया जा सकता है. तो ये एक अब सोच ही नहीं रह गई, इस पे काफी काम भी चल रहा है. लेकिन वही है ना कि जो भी हम समाज में चेंज लाना चाहते हैं उसमें अपना समय लगता है. गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज बनाती हैं और प्राइवेट सेक्टर का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है. और हमारे देश में अगर देखा जाए, विश्व में भारत पहला देश था जिसने प्राइवेट सेक्टर को बोला कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट्स का 2% समाज सेवा में लगाएं. ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे देश में कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और जो लास्ट माइल तक नहीं पहुंच पा रही हैं और जो एनजीओज इतना अच्छा काम कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, बीच में एक ब्रिज की तरह उन्होंने बोल दिया प्राइवेट सेक्टर को कि आप लग जाइए काम पर. तो अगर देखा जाए, एक स्ट्रक्चर रेडी है इस सोच को बदलने के लिए. अब ये है कि इसको बदला कैसे जाए.
और ये करने के लिए ऑटोमेटिकली अब जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है तो वो पार्लियामेंट में या फिर टॉप मोस्ट बॉडी बनाते हैं। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर में अगर ऊपर अगर सीईओ, एमडी, बोर्ड ये अगर ऐसा सोचते हैं तभी ये डिफरेंस आ जाता है। और आपने जैसा बोला सॉल्व फॉर सोसाइटी हमारा बिलीफ है। हम एक आईटी कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, और एज एन आईटी कंपनी ये हमारी जिम्मेदारी हम समझते हैं कि हमारे देश की इतनी बड़ी ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टू रीच स्केल, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का पहुंच जाए, और ऑल्सो टू रीच डेप्थ, मतलब जब ऐसा बात सिर्फ उन तक पहुंचने की नहीं है, बात है उनके जीवन में बदलाव लाने की। और ये हम सिर्फ सीएसआर टीम ही नहीं, हमारी कंपनी का हर एक एम्प्लॉय इसके लिए बहुत ही फील करता है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ ऐसी एक सोच के बीच में ये काम करने के लिए, क्योंकि मैं अकेली ऐसा नहीं सोच रही, मेरे आसपास सब ऐसा सोचते हैं। जब पैंडेमिक आया और हम डिजिटल क्लासरूम्स करते हैं देश के कोने कोने में, स्पेशली महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर, तो हमने देखा कि डिजिटल क्लासरूम में जब हम कनेक्ट करते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थ्रू, और उन स्कूल्स में टीचर्स सफिशिएंट नहीं थे, या फिर अगर टीचर्स थे तो स्टेम सब्जेक्ट्स की, जैसे रोशन ने बात करी, वो ठीक से नहीं पढ़ा पाते थे, तो वहां हम कनेक्ट करके उनको पढ़ाते थे। पर पैंडेमिक में, लॉकडाउन में तो स्कूल बंद हो गए। तो हमने क्या किया, हमने जो उस गांव के हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर्स थे उनको ट्रेन किया कि आप एटलीस्ट घर घर में जाके, क्योंकि गांव में फिर भी इतना लॉकडाउन नहीं था उन दिनों, उन आप रिक्वेस्ट करिए कि माँ बाप बच्चों को एटलीस्ट दिन में 1 घंटा अपना मोबाइल फोन दे दे। और फिर बच्चों के साथ हमने कनेक्ट करके ये सारा ट्रेनिंग शुरू करा। तो उसमें भी हमने क्या देखा कि लड़कों को इजीली चीजें मिल जाती थी और लड़कियों के लिए थोड़ा सा और हमें मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने कोशिश करके उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करी। हम डिजिटल इंक्लूजन की जब बात करते हैं, बच्चे क्या बड़ों के पास भी 100% मोबाइल फोन नहीं है, तो ऐसे में हम कैसे उन बच्चों को कोशिश करें कि वो स्कूल में टिके रहें, क्योंकि काफी जगह ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, और अगर उनका ये जो डोर अगर टूट गई एक बार तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हमने वहां के लोकल केबल टीवी ऑपरेटर से बात करके रिकॉर्डेड सेशंस को डिस्प्ले किया कि बच्चे अगर उनके पास मोबाइल फोन नहीं है तो कम से कम टीवी में अगर 1 घंटा वो देखे क्लास में क्या बताया जाता है तो वो जुड़े रहे, वो कड़ी बनी रहे। तो ऐसे करके हमने डिजिटल इंक्लूजन हम भारत के कोने कोने में लेके आए, जिससे कि बच्चे क्लास में पढ़ते रहे। महिलाओं के लिए हमने उनको ट्रेनिंग दी। हमारा एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम वारली को रिवाइव करना चाहते हैं, तो हम उन महिलाओं को डिजिटल ट्रेनिंग दी। ये एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है, उनको किसी सेंटर में नहीं आना पड़ता, वो अपने घर के बाहर ही जो उनका जो एरिया होता है, अगर किसी का घर थोड़ा बड़ा है वहां पे इकट्ठा होके वो सीखती हैं। तो ये ट्रेनिंग्स हमने डिजिटल मोड में ऑन रखी और उनके प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर कर हमने, जैसे आप Amazon में कुछ सामान अगर खरीदेंगे वैसे ही वारली के उनके सामान लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन हमने देखा कि पैंडेमिक में फिर से उनकी सेल इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो हमने कैंपेन शुरू करी वोकल फॉर लोकल, और उसमें हमने लोगों को बोला आप सामान खरीदिए, ऑर्डर दीजिए, पेमेंट करिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, लॉकडाउन खुलते ही ये सामान आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह हमने देखा कि महिलाओं का जब हम डिजिटल इंक्लूजन करते हैं लेकिन उसको एक होलिस्टिक तरीके से देखते हैं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से परिवार को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा होता है। बिल्कुल। और शिप्रा, ये जो सहभागिता है आपकी, जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने जो ये सहभागिता करी है एनजीओज के साथ और दूसरी ऐसी संस्थाओं के साथ जो ऑन ग्राउंड धरती पर जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जब आपने टेलीविजन पे लेक्चर्स की बात करी तो वो जब पहली बार मैंने सुना तो बहुत ही प्रभावशाली है। किस तरह से एक तरफ है डिजिटल टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ है एक इनोवेटिव तरीका
कि अगर सबके पास नहीं है वो गैजेट, तो क्यों ना सामूहिक रूप से उसको लोकल केबल टेलीविजन के जरिए वो जो उनकी शिक्षा है वो चलती रहे। और ये ज़रूर आपने महसूस किया होगा, या आपकी रिसर्च ने इंडिकेट किया होगा कि जब भी कोई मुश्किल आती है, तो जो बच्ची है, जो गर्ल चाइल्ड है, उसकी शिक्षा सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाती है। तो या इस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? गौरी, बहुत ही आपने ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है। मैं 13 साल की थी जब मैंने वॉलंटियरिंग शुरू करा। मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी और वीकेंड्स में जाकर हम जो पास का गांव था वहां टीचर्स के साथ जाके बच्चों को पढ़ाते थे। और 13 साल की उम्र में मैंने देखा कि हर हफ्ते जब हम जा रहे हैं तो लड़के तो बड़े रेगुलर हैं और लड़कियां कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। तो मैं भी बहुत छोटी थी और मुझे समझ नहीं आया, मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि ऐसा क्यों है। और बाद में जब मैंने अब जब मैं इतने सालों से ऑलमोस्ट 20 साल हो गए अब काम कर रही हूँ, तब मैंने जाना कि ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने पहले बोला, जिम्मेदारी लड़की पे आती है। शादी करने की भी जिम्मेदारी लड़की की छोटी उम्र से ज्यादा उस पे हो जाती, क्योंकि माँ बाप को भी लगता है कि जल्दी से इसका घर का सेटल हो जाए। ऐसे में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में जब ऑलमोस्ट 200 देश एक साथ आए, उन्होंने कुछ एक एजेंडा बनाया कि ऐसी विश्व की कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि सारे देशों को मिलके काम करना चाहिए उन पर। और उनमें से एक है उनका गोल नंबर 5, SDG 5, जेंडर इक्वालिटी। हमारी जो कंपनी है, हमने देखा कि उसके अंदर क्या क्या से ऐसे पेन पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी जरूरतें हैं जो कि हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी हमें उन पे काम करना चाहिए। तो हम उसको स्टडी करते हैं, फिर हम संस्थाओं से मिलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संकल्प मानव विकास, और उनके थ्रू हम टेलरिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं महिलाओं को। हमने सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा उनको ट्रेनिंग कंटिन्यू किया जितना हम कर सकते थे, और विमेंस डे में हमने कंपटीशन रखा उन महिलाओं में, पोएट्री राइटिंग कंपटीशन। तो जो उनकी विनर थी वो बोलती हैं कि 20 साल बाद उन्होंने कलम उठा के कुछ लिखा है और उनकी कविता इतनी सुंदर है। और वो जब कविता हमने सुनी, तब एज अ कंपनी क्या एज एन इंडिविजुअल भी महसूस होता है कि देखिए, अगर ये 20 साल तक लिखती तो आज कहाँ से कहाँ आ जाती। तब महसूस होता है कि ये जो डिजिटल इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं, ये एक छोटी उम्र से ही होना कितना जरूरी है। और तो हम इस पे काम करके हर साल इसकी एक रिपोर्ट भी बनाते हैं और पब्लिक डोमेन में भी डालते हैं, जिससे कि हमें ही नहीं बाकी लोगों को भी पता चले कि क्या क्या काम कर रहे हैं हम इस विषय में। जी। और शिप्रा, आपने अपनी बात में पहले भी जब हमारी बातचीत हुई थी, तो ज़िक्र किया था कि किस तरह से रोल मॉडल बहुत ज़रूरी हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जो महिलाएँ लेट्स से रोज़गार के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं। कभी-कभी प्रतिस्पर्धा, कभी-कभी कॉम्पिटिशन दूसरी महिलाओं को भी अग्रसर करता है कि वो बेहतर करें। तो अगर आप बहुत ही कम समय में हमें ये जो रोल मॉडल होने की जो ज़रूरत है, इसके बारे में कुछ बताएँ। और जिसमें यस, थैंक यू। डिजिटल क्रूसेडर्स कहिए, जिनको हम सेलिब्रेट कर सकें। मैं जल्दी से एक उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे साथ 2 महिलाएं हैं हमारे वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम में, एक का नाम रजिया है और एक का नाम है अंजलि। और ये जो दोनों हैं, स्पेशली रजिया, वो इतने कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से थी कि उनके परिवार वाले उनको बाहर नहीं भेजना चाहते थे ट्रेनिंग के लिए। हमने उनको, उनके परिवार से जाके हम मिले, हमने उनको रिक्वेस्ट किया और रजिया ने शुरुआत करी वारली सीखने की। 1 साल के अंदर अंदर रजिया आज खुद एक मास्टर ट्रेनर है, जो कि और महिलाओं को इकट्ठा करके सिखाती हैं। और उनकी जो स्टोरी है वो UNDP की वेबसाइट पे भी है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब हम ये एक कम्युनिटी के अंदर
जहां हमें काम करना है वहां से आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे रोल मॉडल्स को, और रजिया को देख के न जाने कितनी ही महिलाएं जुड़ी हमारे साथ, तब उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है, क्योंकि वो रिलेट करते हैं कि हम सब उन्हीं सर्कमस्टेंसेस से निकलकर, उन्हीं परिस्थितियों से निकलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी। थैंक यू शिप्रा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पैनलिस्ट से कि वो अपना वीडियो ऑन करें, और अब हम सवाल और जवाबों की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पहला सवाल जो है वो वर्षा कसल का है, अगर मैं आपका नाम ठीक से ले रही हूँ। वर्षा ने ये लिखा है कि मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सवाल को पढ़ूंगी। Many areas have gender discrimination. Promoting digital access needs to start from home. घर से डिजिटल एक्सेस की शुरुआत होनी चाहिए, वर्षा का ये मानना है, क्योंकि अक्सर जो है फैमिलीज मोबाइल एक्सेस लड़कों को लेट्स से 15 साल की उम्र में दे देती हैं, लेकिन वर्षा ये कह रही हैं कि लड़कियों को जब तक वो 20 या 25 साल की ना हो जाए उनको ये एक्सेस नहीं दिया जाता. Women lack access to digital devices, so I think we need to reduce this type of discrimination. And women should be aware of their rights. We can also improve this by empowering and improving the financial position of women. मैं चाहूंगी कि अनंदना इसके बारे में अपने व्यूज एक्सप्रेस करें, और वर्षा जो कह रही हैं उस पर आपकी क्या सोच है उसे आप शेयर कीजिए प्लीज। वर्षा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और इसके पीछे हमारे पुरुष प्रधान समाज का होना है। ये इसलिए है क्योंकि मोबाइल फोन एक तरह से आपको स्वतंत्रता देता है। वो आपको अपनी अभिव्यक्ति कभी कभी छुपकर, कभी कभी खुलकर, किसी से भी किसी समय कहीं पर भी कुछ भी कहने की स्वतंत्रता देता है। और अगर महिलाओं को ये मौका मिल जाए, इस अवसर का वो क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके घरों में हिंसा हो रही है, पुलिस को फोन करके अपना बचाव करना। अगर आपकी सिलाई बुनाई या कुछ बनाने की छोटी सी दुकान है, उसके लिए ऑर्डर करना, उसके फोटो लगा के सोशल मीडिया पे डालना, अपनी वीडियो बना के किसी मुद्दे पर चर्चा करना, ये जो सारी चीजें हैं वो एक ऐसी दिशा की तरफ हमें ले जाती हैं जिसमें नारी सशक्तिकरण होगी ही होगी। तो इस वजह से मोबाइल फोन जो है वो उन तक आखिर में इसलिए आता है क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उनको रोककर या उनके विचारों को अपने विचारों के हिसाब से ढालने का जो हजारों सालों से जो कार्यक्रम चला आ रहा है, वो एक मोबाइल फोन, इंटरनेट एक्सेस, कंप्यूटर बहुत ही खूबसूरती से रोक सकता है। क्योंकि अगर किसी सवाल का जवाब है, चाहे वो अपने शरीर के बारे में है, अपनी मानसिकता के बारे में है, अपनी आकांक्षाओं के बारे में है, या फिर जैसे कि बात हो रही थी गौरी और मैम के बीच में कि अगर आप चाहें तो आप आदर्श भी ढूंढ सकते हैं जो कि आपके परिवेश में ना हो, आपके परिवार में ना हो। सो आई फील दैट दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रियार्की. But because of the pandemic, the only positive is that everybody recognizes that this is a symbol around which we can collectivize and make a change. So ये moment lose नहीं होना चाहिए. हमें अब इस मौके को पूरी तरह से अपने हिसाब से ढाल लेना चाहिए. और जैसे रोशन भी बात कर रहे थे, ये जरूरी नहीं है कि ये आसानी से हो, क्योंकि जब तक आपके पास आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, एक मोबाइल फोन से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बस इतना कहूंगी कि अगर आपके आसपास ऐसी बच्चियां हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए फोन ले सके, बट कभी उनके साथ बैठ जाएं, उन्हें सिखाएं, उनसे किसी सवाल के बारे में पूछें। अगर वो कुछ पढ़ रही हैं तो उन्हें उसे ढूंढ कर इंटरनेट पे दिखाएं। और फेक न्यूज जो है, जिसने हम सबके परिवारों में खूब तहलका मचाया हुआ है, वो जो है वो बहुत ही जरूरी है अगर हम उसकी बात करें। क्योंकि मोबाइल से सूचना मिल जाना पर सूचना सही है, सच्ची है, सरल है, वो हमें नहीं पता लगता। तो सूत्र के बारे में जानना, ये समझना कि स्रोत क्या है, सारी चीजें पिरोकर ही हम डिजिटल एक्सेस की बात कर सकते हैं। तो अगर उनके पास डिवाइस नहीं है, उनको आप विश्लेषण करना सिखाइए, ताकि जब डिवाइस आए तो वो आगे निकल जाएं। बिल्कुल अनन्या, बहुत खूब कहा। और क्योंकि आप स्रोत और सूचना की बात कर रही थी, इससे एक और कड़ी जुड़ी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी
और एक जिम्मेदाराना तरीका टेक्नोलॉजी को यूज करने का। तो शिप्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि एक्सेस पहुंचा दी जाती है, मान लीजिए कि गैजेट्स संभव है, जैसा कि वर्षा भी कह रही हैं कि एक एक्सेस मिल जाता है टेक्नोलॉजी के तरफ, लेकिन उसके बाद जो उसकी एक जिम्मेदारी है उसको यूज करने की, उसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। स्रोत एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं। जब लोगों की मोबाइल के जरिए आवाज आती है तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो उस आवाज को बंद करना चाहते हैं। तो आप जरा कुछ हमें बताएं इस बारे में। मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगी गौरी इस रिलेटेड। एक जो कि मैंने बताया, जब हम बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो 1 घंटा एटलीस्ट दिन में मोबाइल फ़ोन के साथ हमसे जुड़ें। हम ये भी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हम बच्चों के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, और वो बच्चे कई बार छोटे बच्चे हैं। उनको अभी इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। हम ये भी समझते हैं कि इससे जो स्पेशली गर्ल्स हैं, वो भी थोड़ी-सी वल्नरेबल हो जाती है। मतलब एक इंटरनेट के माहौल में उनको अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। तो ऐसे में हमारे एम्प्लॉयी वॉलंटियर्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, और वो समझाते हैं इन बच्चों को समय-समय पे उनसे मिलके कि जिस टेक्नोलॉजी का उनको एक्सेस मिला है, जो उनको जिसको वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करें। और गलत इस्तेमाल होता क्या है? सबसे ज़रूरी ये है बच्चों को समझाना। उनको तो नहीं समझ है कि क्या सही है, क्या गलत है। एक तो ये। और दूसरा, महिलाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो भी महिलाएँ, हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हमारे, जो छोटे उनके एंटरप्राइजेज़ हैं, उनका हम एक नेटवर्क बनाने वाले हैं, जिससे कि वो आपस में एक-दूसरे से सीखें, आपस में एक-दूसरे के को रोल मॉडल्स बनाएँ, और आपस में खुद एक रोल मॉडल बने बाकी सबके लिए। तो इसी तरह डिजिटल इंक्लूजन के थ्रू हम गर्ल चाइल्ड को और महिलाओं को अ, एक एम्पावरमेंट, हम सशक्तिकरण देने की कोशिश में हैं। थैंक यू शिप्रा। रोशन, एक बहुत अच्छा सवाल आया है और मुझे लगता है कि हम शुरुआत आपसे कर सकते हैं इस सवाल की। There's somebody who's asked that women empowerment is not possible without the buy-in from the men of the family. How can we sensitize men to be more open to this topic? uh, I think it's a very pertinent point, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो देयर शुड आल्सो बी मेन इन द रूम। जो आदमियों की विचारधारा है उसमें भी बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। जी, एक्चुअली इस बात पे मैं यही कहना चाहता हूँ। हमारे कई सारे इंटरवेंशंस, हमारे जो एक्टिविटीज होते हैं उसको इंटरवेंशंस भी कहे जाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, अबाउट 8 साल पहले, 8-9 साल पहले जो है, ये एक नया विचार आया कि मेन को भी शामिल करते हुए क्या हम जेंडर की बात कर सकते हैं कि नहीं। जिसका मतलब, जो हम मतलब जिस चीज पे हम बात कर रहे थे, वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है, वो कहाँ तक, हाउ मच इज इट एक्टिवली ब्लॉक्ड और हेल्प बाय मेन। और इसको लेकर के एक्चुअली मैं थोड़ा लिंक्स भी शेयर करना चाहता हूँ। देयर आर सम गुड एग्जांपल्स, पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि बेसिकली इट स्टार्ट्स एट द लोएस्ट लेवल, दैट इज विद इवन विद बॉयज। इशू ये होता है कि इवन जो प्रोग्रेसिव हाउस होते हैं, मतलब एक गांव में अगर 3 महिलाएं रहते हैं और वहां का जो आदमी है वो कुछ नहीं कहता है, वो चाहते हैं कि अपने जो घर वाले हैं वो आगे बढ़े, वो घर से बाहर चले जाएं, वो मतलब चाहे फोन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, वो करे। ऐसे लोग को मतलब विद इन द कम्युनिटी ऑफ मेन, उन्हीं पे दबाव आते हैं बाकी मेन से। मतलब दूसरे आदमी ये कहता है कि आप क्या कर रहे हो वहां पर, ऐसा कैसे चलेगा आपके घर पे। और उसको मतलब एक क्या बोलते हैं, एक माहौल ऐसा बनता है कि ये जो सपोर्ट देने का काम है, जो कि एक्चुअली ज्यादा काम है ही नहीं,
It's literally the job of men is to get out of the way of women ज्यादातर केसेस में. तो उस केस में इतना सारा कुछ बना रखा है, कह रहा हूँ कि जो आदमी है मतलब करने के पहले उसको 10 सवाल का जवाब देना पड़ेगा बाकी आदमी. तो हमने क्या किया, 3-4 मतलब इसका अलग अलग मॉडल्स देखने को मिलेगा. इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है. जैसे यूएसए वर्क्स इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. सो इवन जो अफ्रीका में काम चल रहा है, खासकर सेनेगाल और मलावी जैसे कंट्रीज में, वहां पर देयर इज ऑलरेडी अ स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. तो वहां पर इट वाज अ केस ऑफ गेटिंग द बाय इन ऑफ मेन कि ये प्रोग्राम चल रहे हैं, आपको भी शामिल रहना है इसमें. बट इन द केसेस ऑफ लेट्स से पार्ट्स ऑफ इंडिया जहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल विचारधारा है, वहां पर द प्रोग्राम स्टार्टेड विद द बॉयज एंड द गर्ल्स, द चिल्ड्रन एट होम, कि सबसे पहले वो आपस में बात करें. What exactly is the situation at home? What exactly are the things stopping us from getting where we want to be? And taking those ideas home in a soft way. तो मतलब वो डिस्कशन फिर घर पे स्टार्ट हो जाती है. बिकॉज ये जो माइंडसेट का जो चेंज की हम बात कर रहे हैं, दैट कैन नॉट हैपन इमीडिएटली इन वन वर्कशॉप. एंड इनफैक्ट जैसे मैं कह रहा हूँ, पीपल हु आर ऑलरेडी सपोर्टिव, they also feel bad to admit that they are supporting this. So it really needs to start at home, and that resolve needs to be built up privately. और उसके बाद जो है फिर of course you can have communities of support जहाँ पर men can support other men in these kinds of things. But सबसे पहले जो है, those new ideas need to be brought to the house. In some cases there will be new ideas in the house. In some cases किसी ने already सोच रखा होगा inside that house that how can this be done, but somebody is being stopped by whatever forces. And so the question is, how do we build that kind of an environment again, by engaging men and boys to start talking about these things within the home. क्योंकि मतलब हम जितना इसको as we destigmatize this whole thing, it becomes easier to talk about that. As soon as these issues become public, I mean, the thing we want to have happen is eventually there is an opposite kind of pressure. आज के डेट में जो दबाव आ रहे हैं आदमी के ऊपर in conservative societies ये है कि आप इसको क्यों करने दे रहे हैं. But we can also flip it around, that why are you not supporting the women of your household or the people, whoever they are in your household, to do the best that is possible for them. And isme I do think this particular moment, Anandana also had mentioned that there is a large shift happening, and I think just the fact of COVID-19 has made apparent a lot of different things. And so this idea of anyone can participate in the economy, everyone has a fair share, something to contribute to the household. This idea, I think, what we're seeing from a lot of communities is that it is there, even though in the short term, a lot of the workforce of women has shrunk. The next few years might look really interesting because all of a sudden everyone says what has happened is not right. It's maybe it's too much, and there is that kind of a feeling, at least from our partners on the ground, that this kind of a change is happening. I'm very optimistic. Let's see. Thank you, Roshan. That's also encouraging for all of us to hear that. सुमन चौधरी का अब मैं सवाल लेना चाहूँगी, और सुमन मैं कोशिश करूँगी इसको पूरा जस्टिस करूँ इसे पढ़ने में. आप ये कह रही हैं, और मैं ये आनंदना से ये सवाल पूछना चाहूँगी. सुमन ये कह रही हैं कि मैं खुद का वजूद बनाना चाहती हूँ, लोगों के बीच में जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहती हूँ, इसलिए मैंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाया है. लेकिन कभी-कभी मैं एक टॉपिक पर खुल के बात करना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आता कैसे करूँ. वो टॉपिक है हमारे वजूद, हमारे पहनावे को लेकर. So basically if one is to condense it, Suman has started a YouTube channel, और वो ये चाहती हैं कि वो उसमें कई ऐसे मुद्दों की बात करें, लेकिन शायद उनको हिचकिचाहट हो रही है. जैसे कि पहनावे को लेकर जो सोच है, उस पे वो कुछ कंटेंट डालना चाहती हैं. अनंतना, आपने इतने क्रिएटिव तरीके से कई मुद्दों को बिल्कुल सहजता से लोगों तक पहुंचाया है. आप इसके बारे में अगर कुछ सुझाव दे सकें. Thank you.
आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये क्रिएटिव भी है और इसमें पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो औरतों को कही जाती है वो ये कही जाती है कि तुम्हारी स्कर्ट बहुत छोटी थी, तुम्हारा पल्लू ढलक गया, और चाहे आप ऊपर से नीचे तक भूखे में भी हो तो भी गलती आपकी ही होती है। तो कपड़ों के बारे में बात करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। और जहां तक आशिया का सवाल है, इसमें हमने औरतों ने आपस में एक दूसरे से इससे बात की है। तो उसमें मैंने जो तकनीक अपनाई थी वो ये की थी कि मैंने अपना जो पहनावा था, जब भी जो भी मैं पहन के जिसके घर जाती थी, मैं अपने कपड़ों से पहले बात करती थी कि आपको मेरा पहनावा ठीक लगता है या नहीं लगता है, अगर लगता है तो क्यों लगता है, या मैं उनसे ये सवाल करती थी कि क्या कोई ऐसी चीज है जो आप कभी भी नहीं पहनेंगी और क्यों। कभी कभी हमें लोगों को सामने से टक्कर देने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हमें उन्हें मौका देना चाहिए कि वो ये सोच सकें कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। और ये सवाल मैं हमेशा महिलाओं से ही नहीं करती हूँ, मैं जिन बच्चों को पढ़ाती थी उसमें लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती थी, और बच्चे खैर कहना नहीं चाहिए क्योंकि सब एमए में पढ़ते थे, सब बड़े हो चुके थे। फिर भी उन क्लासेस में, जब मैं एमए की क्लासेस में भी पढ़ाती थी, तो मेरा अक्सर सवाल होता था कि आपके घर में सबसे पहले जीन्स किसने पहनी, किस महिला ने, स्विम सूट किसने पहना। स्विम सूट पहनने का मतलब यह है कि आप तालाब में जाकर आप स्विम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो तालाब में आप क्यों नहीं जा सकते, महिलाएं कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती। तो एक सवाल से कई सवाल निकल सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप बात करें। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभी सिनेमा में खास तौर से, और आप तो यूट्यूब चैनल है, आप वीडियो बनाती है, आप खुद जिसे कहते हैं निर्माता हैं, तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि क्या कहकर सब कुछ ना दिखाकर हो सके। तो जरूरी नहीं है कि कपड़े ही दिखाएं, आप किसी और चीज के बारे में भी बात कर सकते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि एक लड़की है, वो चलती हुई जा रही है, और इस बारी क्या हो रहा है, वो जहां जा रही है वो गिर रही है, और स्कूल पहुंचते पहुंचते उसकी पूरी जो पोशाक है उस पर खूब सारे दाग लग गए हैं, उन्हें खूब डांट पड़ती है। लेकिन आखिर में कहानीकार ये लिखते हैं, फिर उसने जब अपना घूंघट उतारा, उसे समझ में नहीं आया कि माँ और दादी कैसे बिना टक्कर खाए चलती हैं। छोटी सी बात है, पूरी कहानी में हमें ऐसा लगा कि ये लड़की गिरती हुई जाती है, बड़ी शैतान होती हो, पर आज उसका पहला दिन था जब उसने घूंघट पहना था। अब क्योंकि उसकी माहवारी शुरू हो गई हो या कोई और बात हुई हो, कुछ और है, लेकिन इस तरह से कहानी को आप मोड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी ये कुछ तरकीबें हैं। बाकी आई एम श्योर अगर आप इस विषय के बारे में और सोचेंगे, आप और भी बेहतर कुछ निकाल पाएंगे। एंड ऑल द बहुत बेस्ट। अच्छे अनंतना, बहुत ही प्यारा जवाब। और सुमन, आशा करते हैं कि आप कुछ बहुत ही चुस्त तरीका निकालेंगी पहनावे के बारे में कहने का अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम रियली वी लुक फॉरवर्ड टू इट कि आप कैसे वो बात कहती हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को ये भी बताना चाहेंगे कि एक सर्वे पॉपअप करेगा यहाँ पर इस बातचीत के बाद, और आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है कि कृपया वो सर्वे को आप जरूर भरें। उससे हमें ये जायजा होता है कि हमारी बात और ये वाला जो पैनल है कितना सफल रहा आप तक इस चर्चा को पहुंचाने में, मुद्दों के बारे में बात करने में। एक और गौरी, सवाल है। जी गौरी सॉरी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, बट मैं सुमन से एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि जी यूट्यूब पे वो हैं, तो ये जरूर है कि क्योंकि इंटरनेट पे कोई वैसे किसी को रोक नहीं सकता है, तो हो सकता है अगर वो कोई ऐसी चीज लगाए जो कि नारीवाद के बारे में हो सकता है सामने से कुछ चीजें ऐसी आए जो कि सुनने में ठीक ना हो, या कई लोग उनके प्रोत्साहन को तोड़ने की कोशिश करें या उन पर सवाल उठाएं। इंटरनेट की दुनिया में इसे इंटरनेट हरासमेंट कहते हैं, ये होता है। आशिया के यूट्यूब चैनल पे भी मुझे कई बारी जो कमेंट्स है उनको डिसेबल करना पड़ता है, क्योंकि लोग कई बारी ऐसी चीजों को लेकर काफी क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि महिलाएं कैसे बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं। तो आपको ये भी सुमन सोचना है कि कौन सा वीडियो आप अनलिस्टेड रखना चाहेंगी ताकि अगर आप किसी को भेजे वो देख सकें, या प्राइवेट रखना चाहेंगी ताकि आप छोटे समूह में उसे दिखा के चर्चा कर सके, या पब्लिक रखना चाहेंगी और कमेंट्स ऑन या ऑफ रखना चाहेंगी। तो एज अ यूट्यूब मेकर, जैसे मैं भी सीखती हूँ, जैसे मैं लगाती हूँ, मुझे कुछ समझ में आता है, मैं भी चल चल के ही इसी राह पे देख रही हूँ कि ठोकर कहाँ है, पत्थर कहाँ है, कांटा कहाँ है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। तो घबराइएगा नहीं अगर ऐसा आपके साथ होता है, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। और बस मैं ये गौरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में एक ये हो गया है कि अब्यूज आना, किसी का आपको बिल्कुल सामने से कुछ कह जाना, और फिर उसका कोई सुनने वाला नहीं, कोई मांडवाली करने वाला नहीं, तो वो प्रॉब्लम
हो सकती है। बस ये एक और सॉरी। इससे आप डिसअपॉइंट ना हो सुमन, आनंदना, हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपनी बात कहती रहें, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ें, ताकि जी। कहीं भी आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस ना करनी पड़े। शिप्रा, ये अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सवाल ये है कि हाउ मच इन्फ्लुएंस डज इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट हैव ऑन एनेबलिंग अ कंड्यूसिव डिजिटल एनवायरनमेंट फॉर वुमेन? तो सरकार का, संस्थाओं का कितना रोल रह सकता है टू क्रिएट अ डिजिटल एनवायरनमेंट? Working at the community level is great, but a systemic support at the government level seems to be lacking. And when we speak about the substantive inclusion of women in the digital sphere. सबसे पहले जिन्होंने ये सवाल पूछा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मेरी जो सोच है, क्योंकि मैं वैसे भी फौज में थी और हमेशा से ये मेरी सोच रही है कि आप खुद एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकती हैं या बन सकते हैं चेंज लाने के लिए। आपको ना ही किसी गवर्नमेंट की जरूरत है, ना किसी सीएसआर की जरूरत है, ना किसी प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है। सबसे पहले अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाना कि हम कुछ कर सकते हैं, सबसे पहले उसकी जरूरत है। दूसरा, जो अवेलेबल है रिसोर्सेज हमारे हाथ में, हमें आसपास उनके लिए देखना चाहिए। हमारे परिवार में किस किस को एक्सेस है? आनंदना की फिल्म हमने देखी। ये एप्स ऐसी कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो हम लेके आगे बढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अपने आप को कैसे वहां तक लेके आए, और उसके आगे हम जब इन विषयों के बारे में सोचते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए और बाकी इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए, अपने आप ही हमें वो दरवाजे खुलते हुए नजर आते हैं। या ऐसे भी लोगों से फिर जानकारी होती है इस प्रोसेस में, जिनके साथ आप बातचीत करके भी उन सवालों के जवाब पता कर सकते हैं। जैसे कि आज का ये बातचीत हो रही है, आपको हमसे बात करने की जो ये एक प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर गौरी खुद एक शिक्षक हैं, आनंदना फिल्म मेकर हैं, रोशन एक मल्टीलैटरल एजेंसी, वहां पे वो कितनी रिसर्च करते हैं, और मैंने प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसे आपकी सोच थी, आप यहाँ आए और आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, यही कहना चाहूंगी। थैंक यू शिप्रा। आखिरी सवाल है, और मुझे लगता है इसमें आप तीनों का हमें व्यूज जानने होंगे। ये आखिरी सवाल ये है कि वी कैन नॉट स्पीक अबाउट डिजिटल इंक्लूजन फॉर वुमेन विदाउट टॉकिंग अबाउट डिजिटल सेफ्टी। अभी आनंदना ने हल्का सा इसका जिक्र किया था, लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो सेशन है वो इस नोट पे हम इसका अंत करें। We cannot speak about digital inclusion for women without talking about digital safety. How does increased vulnerability of women hinder the movement of digital inclusion? This fear not only holds women back from being digital citizens, but also becomes an excuse for a patriarchal society for removing access to digital mediums for them. So, a quick comment from all our three panelists about this whole balance of A, inclusion on one side, and B, safety on the other. So quickly, my 2 cents on this, कि जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, हमारी जो नॉर्मल सोच होती है, हम महिलाओं को बोलते हैं कि आप स्ट्रांग बनिए, आप आगे बढ़िए, पर हम अपने बेटों को एक जल्दी से, जब उनकी छोटी उम्र होती है, तब से हम उनको कभी-कभी सिखाना भूल जाते हैं कि कैसे वो इज्जत करें अपनी माँ का, अपनी दादी का, घर की महिलाओं का। तो मुझे क्या लगता है कि बच्चों को, जो यंग बॉयज होते हैं, उनको उसी स्टेज से ये सिखाना भी बहुत जरूरत होती है कि लड़कियों को तो कि हाँ अपनी रक्षा करो, और लड़कों को भी कि वो सीखें लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं और क्यों करनी चाहिए। रोशन? इसके लिए मैं एक्चुअली मोबाइल या डिजिटल की दुनिया से बाहर आना चाहता हूँ। हम अगर बात करें बस की, कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन सिटी, उसका एक मतलब क्या बोलते हैं, एक रूप है बस लेना, खुद से बस लेना। अब खुद मतलब एक औरत अगर अकेली बस में चली जाती है रात को,
है ना। एंड अगेन हम लोग 10 साल पहले की बात भी कर सकते हैं, अभी भी यही बात कर सकते हैं कि क्या क्या रिस्क होते हैं। और जस्ट लाइक शिप्रा हैज सेड, एक अप्रोच ये होते हैं कि मतलब आप आप ये करिए, आप वो करिए और बाकियों को भूल जाओ। दैट इज लिमिटेड। लॉन्ग टर्म हमको एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां पर ये एक्टिविटी एक्सेप्टेबल हो जाता है। But even then, जैसे and I'm using the example of a bus because it's very tangible. इंटरनेट पे भी हम मतलब एज डिजिटल पीपल, एज जो इंजीनियर्स जो इस विषय पे बात कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। जैसे बस पे भी यही आइडिया आया कि अच्छा, अगर महिला अकेली जा रही है तो उसके साथ में ना कोई गार्ड भिजवा दे। तो अब नेट पे भी हम यही कर सकते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी मॉनिटरिंग, देयर इज गोइंग टू बी इवैल्यूएशन, दिस एंड दैट। मतलब आपके जो इंटरेक्शंस है ऑनलाइन वो मॉनिटर हो जाएगा और उससे ये सब कम हो जाएगा। मतलब जो भी इश्यूज ऑफ हरासमेंट, वायलेंस। मैं दो बात कहना चाहता हूँ इस पर। वन, दैट द बैड एक्टर्स, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, वो चाहे जितना भी मतलब आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको जितना भी निगरानी करोगे उसके ऊपर, उससे ज्यादा वो मतलब उससे आगे निकल पाएगा। मतलब वो कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढ लेगा, वो कुछ ना कुछ नया नया सोच के साथ आएगा। और जो लोग गलत कर रहे हैं उसको रोकने के लिए खाली एक पुलिस या या एक क्या बोलते हैं, एक मॉनिटर की जरूरत नहीं है। बट इनफैक्ट वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द टेक्नोलॉजी डिजाइन इटसेल्फ, है ना। एंड दिस कम्स बैक टू द इशू कि कौन डिजाइन कर रहा है। आप अगर एक यंग लड़का हो और बाकी आपके फ्रेंड्स के लिए कुछ बना रहे हो कि भाई हम ऐसे पोस्ट करेंगे और लोग आएंगे और उस पर कमेंट मारेंगे, मतलब एंड आई एज ए मैन डू नॉट थिंक अबाउट द इम्प्लीकेशंस कि इसका क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी फेस नहीं किया लाइफ में। सो नाउ व्हाट वी आर आल्सो सीइंग इज फ्रॉम द टेक्नोलॉजी डायरेक्शन देयर आर न्यू डिजाइन्स। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अगर अपनी विचार को शेयर करने हैं, पूरा पब्लिक में होना या उसको मतलब ओपन टू कमेंट, जैसे एग्जैक्टली द इश्यूज दैट अनंदना हैज जस्ट ब्रॉट अप, राइट। लाइक is it necessary that we use the platform in that certain way? So ek to theek hai, but so there are two buckets, right? One is we can take some steps to reduce this by ourselves, and that is men and women both. The more long lasting solution, which is that we start talking to young boys and men now about that. But the third thing is also the technology itself, जिसपे मतलब the platforms which are now open to these kinds of things, they really need to be redesigned from the ground up as well. मतलब exactly हम and in thinking about that digital presence, because again, to come back to the bus analogy, on a bus you have some options. There are not a lot of options. Just मान लें रात के time हो रही है, so there are few options, but you still have an option to wait for a more crowded bus, to to wait for a I mean, again, and I'm sure everyone has their own equations for this, but in a similar way, the platform should also be giving us these kinds of options. How public do I want to make my statement? How much do I want to open this up for public comment and things like that. Baki, I will say though that again, the bad actors are going to be bad no matter what. So we really Very do well need to put, work Roshan. together, Very well put. men and women. Anandana, some quick comments from you. जी, शिप्रा और रोशन दोनों ने आई थिंक बहुत ही सटीक और पैनी बातें करी हैं। परवरिश का भी इसमें बहुत बड़ा जिसे कहते हैं योगदान है, हाथ है। दूसरा, जैसे ये कह रहे हैं कि कौन रचनात्मककार कौन है, और जैसे कि मेरी जो 2 ऐप्स रही, आशिया की ऐप और ये वाली ऐप, ये सब वॉलंटियर्स ने बनाई। उसमें महिलाएं डेवलपर्स थी और हम अक्सर इस बारे में बात किया करते थे कि हम इनके लिए नहीं बना रहे जो कि हम हैं, हम उनके लिए बना रहे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, पर जिनकी विजुअल मेमोरी इतनी बढ़िया है कि बिना अक्षर या अंक के बीच का फर्क जाने वो किसी चीज को देख लेते हैं तो उनको पता है कि किसका फोन आ रहा है। तो आप किस तरह से करते हैं, या फिर जिसे कहते हैं नेटिव या लैटरल इंटेलिजेंस, उसको कैसे आप प्रयोग में लाते हैं, ये सारे सवाल तो जरूरी है ही। पर ये भी सोचना कि अगर किसी की शिक्षा इतनी नहीं है लेकिन वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो हम कैसे इस बात को गारंटी करें कि वो जब कुछ चीज बनाते हैं तो वो वल्नरेबल नहीं हो जाते, उनका डेटा, उनकी इंफॉर्मेशन चोरी नहीं हो जाती। तो जैसे कि ई देवी वाला जो हमारा ऐप है, उसमें हम किसी से उनका नंबर, उनका नाम, उनका ईमेल आईडी नहीं मांगते, क्योंकि
शायद जो लोग आए उनको ये ना पता हो कि हम ये सब इकट्ठा करके बहुत कुछ पता कर सकते हैं आपके बारे में। तो कभी कभी बनाते वक्त आपको कई सारी ऐसी चीजों के बारे में सोचना होता है, और ये क्वेश्चन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट में भी आ जाता है, क्योंकि आजकल मेरा प्रॉफिट आपके डेटा से है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इमेजेस से है। और अगर मैं कुछ बना रही हूँ, कहती हूँ कि मैं ये सारी चीजें आपसे नहीं लूंगी, तो उस पे मेरे पॉपुलैरिटी पे, मेरी चीज के वायरल होने पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको बहुत कॉन्शियस, ये नैतिकता का सवाल है, आपके जीवन का सवाल है। तो बनाने वालों के लिए भी ये सवाल है, और ये हो जाता है, इसलिए हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ही रह जाते हैं और प्रॉफिट के वर्ल्ड में नहीं जा पाते हैं। तो ये पर ऐसी कई अनंतना, सारी बहुत अच्छा आपने इसको हाँ, बात कही है नैतिकता की। और आई जी थिंक ये जो शब्द है नैतिकता, और आज का हम ये जो आज की जो एक गोष्ठी है, इसको इस शब्द पे जरूर खत्म करना चाहेंगे कि हम बात कर रहे थे डिजिटल एक्सेस और जेंडर की, लेकिन कुल मिला के जितनी भी बातें हुई हैं, ये समझ आया है कि सामाजिक परिवेश, स्किल ओरिएंटेशन, रोजगार और नैतिकता, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस एक्सेस से जुड़े हैं। हम आप सबका, सॉरी हमारे पास और वक्त नहीं है, हमारे बहुत ही अच्छे पैनलिस्ट हैं और हम इनसे गुफ्तगू जारी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, हम आप सबका धन्यवाद देते हैं, अमेरिकन सेंटर, यूएस एड और सभी हमारे पैनलिस्ट का धन्यवाद देते हैं। आपसे फिर गुजारिश है, एक सर्वे आएगा, पॉपअप आएगा, उसको ज़रूर भरिएगा। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका फीडबैक क्या है इस सेशन के बारे में। बहुत-बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, रोशन, आनंदना, Thank you थैंक for यू, having me today. for coming on this forum, and thank you धन्यवाद। to the American Center.